Hello students, this is Akshay again, your physics teacher. Now we are going to start a new topic that is called surface tension. Okay, so this surface tension we are going to learn from here onwards. और ये जो सरफेस टेंशन है इसमें थोड़ा सा थ्योरी और न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो कभी कभी क्या होता है सरफेस टेंशन इज कंसिडर्ड टू बी अनदर टॉपिक ओके इन फ्लूइड डायनामिक्स। तो अभी फ्लूइड डायनेमिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में इन्होंने इसको ऐड कर लिया है। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर ऐड कर लिया है, तो हम इसके बारे में अभी सीखेंगे व्हाट इज द सरफेस टेंशन। एंड जस्ट कीप इन माइंड दैट दिस सरफेस टेंशन इज ओनली concerned about liquids. Okay, just keep this in mind. Okay, surface tension is only concerned about liquids, not about gases. Okay, so before learning the surface tension we need to learn about some basics of intermolecular forces. मैं इसके अंदर डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको शायद केमिस्ट्री में ये हुए होंगे intermolecular forces. Just note them down. What are the intermolecular forces? The first one, the force is called as adhesive force, and second is called cohesive force. So what is adhesive force and what is cohesive force? So the adhesive force, it is the intermolecular force, I'm writing in a short, intermolecular force between molecules of different substances. Okay, means let's say a water molecule and a glass molecule. Means if you have seen, this is the glass. Water, sometimes water remains on the surface of this glass, so there is some force of attraction. Or you can take the example of ink and paper also. Okay, so this is what adhesive force. Two different molecules of two different substances are attracted towards each other due to adhesive force. The cohesive force, okay, cohesive force is what intermolecular force between molecules of same substance. And it is a common example everywhere, like water molecule is attracted towards water molecule. So these are two important forces. Okay, and while learning the intermolecular forces, the term we are going to use while learning this surface tension is sphere of influence. Okay, तो sphere of influence होता क्या है? Okay, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता क्या है। मान लो ये पार्टिकल है यहाँ पे, इस पार्टिकल का नाम है ए। ओके, और मॉलिक्यूल इज हियर, वाटर मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं बात करूँ कोहेसिव फोर्सेस की, तो यहाँ पे कोई एक वाटर मॉलिक्यूल होगा या फिर यहाँ पे होगा और यहाँ पे एक होगा। तो क्या होता है, मैंने तीन मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, 1, 2 एंड 3। तो शायद इन दोनों का जो डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे A to 1, इसमें ये शायद इसको अट्रैक्ट करे ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। 1 और 2 को भी अट्रैक्ट करे, लेकिन 1 और 3 जो है इसको शायद अट्रैक्ट करे या ना करे पता नहीं। तो मतलब इस मॉलिक्यूल का एक लिमिट है या फिर यू कैन से इट हैज सम रेंज अप टू विच it it can apply this or it can attract those molecules. So ये जो रेंज है, मैंने यहाँ पे R लिखा है इसको, this range is called as range of molecular force. ओके, और इस रेंज को लेके अगर मैं कोई स्पेयर बनाता हूँ, क्योंकि मॉलिक्यूल सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होगा,
इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, एवरी डायरेक्शन कैन बी इन एवरी डायरेक्शन। तो इस रेंज का अगर मैंने स्पीयर बनाया इन 3D, तो दैट स्पीयर इज कॉल्ड एज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब यहाँ पे अगर ये पार्टिकल है इस पॉइंट में, तो यहाँ पे इस स्पेरिकल रीजन में जो भी पार्टिकल्स होंगे उन पे ये कोहेसिव या फिर एडेसिव फोर्स लगाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर गोइंग टू लर्न कोहेसिव फोर्स। ओके, तो ये बेसिक थ्योरी थी जो हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट व्हाट intermolecular forces. Now let's study about the main definition. What is surface tension? Okay, let me increase this font. Sorry. So surface tension की actual जो definition है वो है the property of liquid at rest. It is a static actually, due to which its free surface, ये थोड़े से important terms है जिनको ध्यान में रखना, because surface tension is a property of surface, that's why it is named so, tries to have minimum surface area and behaves as if it were under tension, somewhat like a stretched elastic membrane is called as surface tension। मतलब होता क्या है कि अगर मैंने एक टैंक ले लिया, दिस इज द टैंक, और इसमें ये पानी भरा, मान लो ये तो इसमें मान लो ये पानी भरा ऐसे पूरा, ठीक है। See, this is a new software, that's why actually one note I am using from this lecture, so थोड़ा सा okay, now this surface A B C and this is D। now this surface ABCD, okay, यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें जो हर एक पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल ऑन दिस सरफेस, तो ये हर एक पार्टिकल को ऐसे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ऐसे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन जाती है। ये इस फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, और ये हमेशा अपनी जो एरिया है मिनिमम रखने के लिए देखता है, इसलिए इट इज ऑलवेज अंडर सम टेंशन एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ सरफेस टेंशन। ये अगर मतलब कुछ समझ में नहीं आया इस डेफिनेशन को पढ़ के तो नो इशू, ठीक है, आगे जाके हम उसको पढ़ने वाले हैं। बस इतना ध्यान में रखो कि सरफेस टेंशन में होता है, जैसे मेम्ब्रेन होती है, अगर आप देखोगे कोई भी ड्रम होगा, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन, उसकी तरह इसका सरफेस बिहेव करता है। जैसे हमने वो वाटर स्पाइडर देखे होंगे जिसके ऐसे पैर होते हैं, तो ये इस पर भागता है, सरफेस टूटता नहीं, ठीक है, इसलिए पूरा रन कर सकता है कहीं पे भी। दैट्स वाई you can assume that the surface is behaving like a stretched membrane। Okay, so same we are going to learn here now। The most important part about the surface tension, it is a molecular theory। जो भी हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा, ओके, इंट्रोडक्शन था सिंपली, तो उसके हिसाब से हम किसको पढ़ेंगे, विल बी लर्निंग अबाउट सरफेस टेंशन।
तो यहाँ पे इस पे थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, एक्चुअली क्या हो रहा है कैसे हो रहा है देखेंगे हम। यहाँ पे देखो मैंने 3 पार्टिकल्स लिए हैं, इस पूरे एक टैंक में लिक्विड भरा है और इसमें 3 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने। फर्स्ट वन इज ए, बी एंड देन सी। ओके, तो देखो तीनों जो है, एक जो ए पार्टिकल है वो पूरा लिक्विड के अंदर है कहीं पर। ओके, बी की अगर बात करूँ मैं, तो बी थोड़ा सा नीचे है फ्री सरफेस से, और सी जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इट इज एग्जैक्टली एट द सरफेस। ओके, तो अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें, और यहाँ पे कौन से इंटरमोलिकुलर, एक के ऊपर कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ओनली कोहेसिव फोर्सेस। ओके, तो ए पे अगर देखोगे तो फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, okay, in every direction cohesive forces are acting. That's why we can say its resultant is zero and it is in balance condition, मतलब इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इस पे इसका पूरा रिजल्टेंट कैसा है, जीरो है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्टिकल बी, बी की अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम निकालूँ, ये पार्टिकल बी है, तो इस पे देखो ये जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दिख रहा है यहाँ पे, उसमें ये जो 1 से 2 तक जो ऊपर वाला है, इसमें एयर और वाटर का क्या है, एडेसिव फोर्स लगा है, तो मैं ऊपर की तरफ लिखता हूँ फोर्स ड्यू टू एडेजन और एडेसिव फोर्स। और ये जो नीचे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें इस पार्टिकल पे जितने भी फोर्स लगे हैं, दे आर व्हाट, फोर्स ड्यू टू कोहेजन। और इसमें अगर देखोगे तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस किसमें ज़्यादा है, वाटर में ज़्यादा है। तो इस केस में cohesive forces are very much greater than adhesive forces. So net downward pull है इस पे, getting it? This is important. तो हमने ए का देखा कि रिजल्टेंट जीरो है, बी पे देखा कि नेट डाउनवर्ड पुल है बिकॉज कोहेसिव फोर्स, बिकॉज व्हाट, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज means its portion of sphere of influence is more in the water region. That's why the cohesive forces are greater than adhesive forces. But if you talk about this particle C, तो C पे देखोगे तो पोर्शन ऑफ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज सेम, मतलब ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, लेकिन लेकिन और इसके हिसाब से एडेसिव फोर्स ऊपर लग रहा है, कोहेसिव फोर्स नीचे लग रहा है। ओके, तो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का पोर्शन जो है दोनों में सेम है, लेकिन डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी मच लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी पता है हमें। तो एडेसिव फोर्स किसके हिसाब से लग रहा है, एयर के, और कोहेसिव फोर्स वाटर के। तो इस हिसाब से दिस कोहेसिव फोर्स इज नाउ also greater than this adhesive force। यहाँ पे जो ये कंडीशन हमने स्टेट की थी, cohesive force is greater than adhesive force, why, because the portion of sphere of influence was greater in water than that of the air, but here why we are seeing the same condition, because now the portion of sphere of influence is same here, okay, 50-50, but the density of air is very much lesser than density of water, and due to the same reason, क्योंकि डेंसिटी क्यों ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, फोर्स इज वॉट, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास में डेंसिटी आनी है, तो दैट्स व्हाई एफ ए इज लेस देन एफ सी, बिकॉज ए एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्सेस आर ड्यू टू एयर एंड कोहेसिव फोर्सेस आर ड्यू टू वाटर। समझ में आ रहा है? तो ये हमने देख लिया कि नाउ इन ऑन सी ऑल्सो देर इज अ नेट
डाउनवर्ड पुल। ओके, तो यहाँ पे पार्टिकल ए पे देखा कि नेट रिजल्टेंट जीरो है, कहीं पे पुल नहीं है, कहीं पे नहीं है, बिकॉज इट इज फुल्ली इन दी लिक्विड। ऑन बी देन देर इज ऑल्सो देर इज अ नेट डाउनवर्ड पे पुल, एंड ऑन सी ऑल्सो देर इज अ नेट डाउनवर्ड पुल। ये मैंने अभी मैं थ्योरी पे नहीं आया हूँ, ठीक है। नाउ now we'll see why we have learned this about these three particles। अगर यहाँ पे देखोगे तो जो सरफेस पे यहाँ पे पार्टिकल्स है, नाउ दिस सी पॉइंट और दिस सी मॉलिक्यूल was at the surface। तो इस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, whatever particles are there, they are experiencing a net downward pull। ओके, और इसके नीचे भी जो है थोड़ा सा, यहाँ पे अगर देखोगे वो भी क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और नेट डाउनवर्ड पुल। तो यहाँ पे मान लो पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे, तो नेट डाउनवर्ड पुल होने की वजह से जितना इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं उतने ही ऊपर रहेंगे फिर। तो मान लो 70 रह गए फिर सिर्फ। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, बिकॉज देर इज अ मच हायर कोहेसिव फोर्स acting on these particles, that's why a minimum number of molecules uh, remains on the surface, and due to this the surface acts like a stretched membrane। इनमें स्पेसिंग बहुत मतलब ज़्यादा होगी ना ऑब्वियसली, कि 100 मॉलिक्यूल्स तो पूरा बैठ जाएंगे कंफर्टेबली, बट एज दे आर एक्सपीरियंसिंग सम डाउनवर्ड पुल, ये क्या कर रहे हैं, मिनिमम नंबर रख रहे हैं सरफेस पे। और जब मिनिमम नंबर होता है एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरा क्या है, ऐसे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगे। ओके, सो लेस नंबर ऑफ, हियर व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, द सरफेस tries to have a minimum number of molecules at these, or the liquid tries to have a minimum number of molecules at its surface। Okay, and it behaves like a stretched membrane, and that's why this property comes into picture called surface tension। Getting it? बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा फर्स्ट बार सीख रहे हो, थ्योरी बहुत है, और थ्योरी जब हम ऑनलाइन सिखाते हैं तब तो थोड़ा डेंजर बन जाता है। तो इसमें से अगर 40 या 50% भी याद रह रहा है तो भी बहुत है। अगर नहीं समझ में आएगा मैं क्लासरूम में फिर से सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे देख लिया कि इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ओके, नाउ हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो सरफेस है इस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं अभी वे डाउनवर्ड पुल तो है, लेकिन एक पॉइंट आ गया है कि पूरे जितने 100 मॉलिक्यूल्स थे इक्विलिब्रियम रखने के लिए डाउनवर्ड पुल की वजह से 70 अभी सरफेस पे रह गए, विच इज़ अ मिनिमम नंबर। तो अभी नेट डाउनवर्ड पुल तो कैंसिल आउट हो गया पूरा, अभी जो भी पुल रहेगा इनके अंदर रहेगा, अमंग देमसेल्व्स जो भी सरफेस पे बचे हैं उन पे रहेगा ये नेट पुल। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये पूरा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। क्लियर है? और इसमें भी अगर मैं देखूं, ये मान लो ये सरफेस है, इसमें क्या किया मैंने, लेट्स अज्यूम सम इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइन मैंने क्या की, ड्रॉ की, विच इज कॉल्ड एज ए बी लेट्स से। तो इस पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी सरफेस है, यहाँ पे भी सरफेस है, तो इसके इधर भी सरफेस क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स इस लाइन पे, और इधर भी इसको खींच रहे हैं। तो ये तो अभी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन पूरा किस में रहा, इक्विलिब्रियम में रहा। बट इफ आई टेक द सेम इमेजिनरी लाइन बट एट द बाउंड्री, लेट्स से दिस इज PQ, तो इसमें इसके लेफ्ट साइड में कोई सरफेस नहीं है,
there will be a net pull towards right. And let's say if I take another imaginary line, here the net pull will be towards left. मतलब जो भी बाउंड्री पे पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा अंदर की तरफ खींचे जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टी है, थोड़ा इमेजिन करो ये सरफेस टेंशन एक्ट कैसे कर रहा है। ये पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है। मान लो ये मैंने क्या किया, वायर है, दिस इज अ वायर, रेक्टेंगुलर वायर, और इसके अंदर मैंने सोप सॉल्यूशन लेके एक फिल्म बनाई है। ओके, वाटर फिल्म होती है ना, या फिर सोप ऐसे फिल्म बनाई है। और इसमें क्या किया मैंने, अनदर ग्रीस लगा के एक छोटा सा ऐसे वायर ऐसे फेंक दिया इरेगुलर शेप का। ठीक है, तो इसको देखो, ये वायर पहले से ही थी, इसके अंदर एक सोप फिल्म है, सोप वाटर फिल्म, और इसके अंदर मैंने दूसरी वायर उस पर ऐसे जेंटली रख दी। अभी क्या किया मैंने, इसके अंदर निडल से फोड़ दिया जो भी वाटर था। तो अभी जो भी फिल्म बनी बची है इसके अराउंड बचेगी। एंड वी नो दैट देर इज अ पुल एट द बाउंड्री, तो इसके ऊपर ऐसे पुल लगना स्टार्ट करेगा सरफेस टेंशन की वजह से। और थोड़ी देर के बाद, और ये सारे कैसे हैं पुल, दे आर परपेंडिकुलर टू देयर लोकल रीजन्स। तो थोड़ी देर के बाद अगर देखोगे तो यही जो फिल्म थी ये पूरी सर्कुलर बन जाती है अपने आप। समझ में आ रहा है? और इस पे जितने भी फोर्सेस हैं ऐसे लगे। अब ये एक्चुअली नॉर्मल फोर्सेस है, यहाँ पे थोड़ा एंगल देख लो, ये समझ लो थोड़ा। ओके, ये ऐसे बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉट द सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे आपके बुक में एक डायग्राम दी है कि ये मान लो टैंक है, और टैंक का टॉप सरफेस में मैंने क्या किया, ये वाटर की फिल्म है। ओके, या फिर वाटर सरफेस है मान लो ऐसे। तो इसमें मैंने एक इमेजिनरी लाइन ले ली पी क्यू। तो पी क्यू पे दोनों साइड से क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। ओके, इजंट इट? तो इसकी लेंथ, नाउ द लेंथ ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन, लेट्स से द लेंथ इज एल। ओके, and the surface tension is defined as the force acting per unit length। ध्यान देना इस पे, मान लो एक टोटल फोर्स F लग रहा है इस लाइन पे। so the surface tension is defined as force acting on that imaginary line per unit length। ये आपको ध्यान में रखना है। द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, दैट इज surface tension is defined as force per unit length। ओके, दैट इज इनफ, ये इतना ही ध्यान में रखो। तो इस हिसाब से सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और लेंथ का होता है मीटर, सो इट विल बी न्यूटन पर मीटर। ओके, और इन सीजीएस आई कैन राइट डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, सिंपली, इसका अलग कोई इसका नाम नहीं है सरफेस टेंशन की इसका। ठीक है, so now let's discuss some important points regarding this surface tension। so what they are, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, ये जब एप्लीकेशन करेंगे तभी समझ में आएगा। क्या है देखो, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। ये जो भी दिख रहा है यहाँ पे सरफेस टेंशन, जिसको हम टी लिखते हैं, कैपिटल टी, इसका एक तो यूनिट न्यूटन नहीं है। दो इट्स नेम इज टेंशन, इसका यूनिट न्यूटन नहीं है, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। और दूसरी चीज़ कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, ये बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे नहीं डिपेंड करता, लिक्विड कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस एंड लेंथ ऑफ लाइन कंसिडर। मतलब मान लो एरिया ट्रायंगुलर है या फिर सर्कुलर है या कुछ भी है, उस पर किसी पे डिपेंड नहीं करता। या फिर जो भी हम लाइन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, लेंथ एल, आप यहाँ पे बोलोगे सर कि एल बढ़ गई तो टेंशन कम होगा, नहीं, क्योंकि अगर एल बढ़ रहा है तो एफ भी बढ़ रहा है, इन दोनों में प्रोपोर्शनलिटी। समझ में, बिकॉज टी इज वॉट,
कांस्टेंट, इट इज लाइक कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये बस इतनी ही कंडीशन है कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कहीं भी यूज नहीं होती फिर भी इसको ध्यान में रखो कि द सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे देखो इसने खुद को एडजस्ट कर लिया नॉर्मल डायरेक्शन में, हर जगह पे लग रहा है, इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कोई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। और इसको हैज अ यूनिक डायरेक्शन विच इज नॉट टू बी स्पेसिफाइड, बता नहीं सकते कहाँ पे। आप इतना ही बोल सकते हो कि मान लो यहाँ पे एक टैंक है जिसमें ये वाटर सरफेस है और यहाँ पे अगर मैंने नीडल रख दी तो इनके राइट साइड पे भी लगेगा लेफ्ट साइड पे लगेगा, लेकिन ऐसे लोकलाइज नहीं है कहीं पे। समझ में आ रहा है, जनरली बोल सकते हो। थर्ड, इट्स डायमेंशन इज ml-2, ये क्लियर है, ये लिख सकते हो, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा यूनिट इज न्यूटन्स पर मीटर, सीजीएस इज डाइन पर सेंटीमीटर। कन्वर्जन फैक्टर जो है वो है 10⁻³ डाइन पर सेंटीमीटर। ये देख लो एक बार, कर लो कैसे होता है। मतलब एसआई में अगर न्यूटन पर मीटर है तो उसको अगर डाइन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10⁵, और मीटर में कितने सेंटीमीटर 10⁻²। तो 10⁵ अपॉन 10⁻², दैट इज 10⁻3। सिंपल है। नाउ फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज completed. Let's say fourth, surface tension of liquid decreases with rise in temperature. This is the most important point. टेम्परेचर जब बढ़ता है तब सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, एंड एट सम टेम्परेचर इट सरफेस टेंशन वैनिशेस एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ये कहीं पे एडवांस सेक्शन में सीख लोगे, बस ये कंसेप्ट याद में रखो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इसकी सरफेस टेंशन पूरी जीरो बन जाती है। ठीक है। The last point that is we are going to discuss at the end of this chapter, which is the surface tension of liquid is very sensitive to impurities. अभी impurities कौन कौन सी हो सकती है, they can be soluble और non soluble और insoluble। तो उसके हिसाब से सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा हम देख लेंगे। तो इसको फिफ्थ पॉइंट को थोड़ा सा स्किप करो, ये चार पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ नोट ऑन सरफेस टेंशन अगर बोला तो आप यू कैन राइट दोस, यू कैन ऐड दिस 4 पॉइंट्स इन दैट नोट। ओके, नाउ अभी जो हमने कंसेप्ट देखी सरफेस टेंशन की, उसका क्या करते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेसिकली। और इस इन दोनों न्यूमेरिकल्स में, ये दोनों न्यूमेरिकल्स लिए मैंने, मुझे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स नहीं मिले कहीं पे, तो ये दोनों के स्नैपशॉट उठा के ले लिए मैंने। तो इन दोनों में भी आपको एक ही या फिर यहाँ से आगे अगर सरफेस टेंशन पे कोई भी क्वेश्चन आता है, टू फाइंड अ फोर्स you are going to use this same equation, that tension is given as force upon length, okay, force per unit length, or you can rearrange it that force due to tension, surface tension, is given as surface tension into length, effective length, okay. So these two you're going to use. So let's have a look at the first question, what they are asking. A beaker of radius 10 centimeter is filled with water. Calculate the force of surface tension on any diametrical line on its surface. The surface tension of water is given like this. Okay? पहले तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या पूछा है। कि ये बीकर होता है ऐसे, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, अभी समझ लो। तो ये बीकर में क्या है, पानी भरा है ऐसे, ओके, दिस इज द वाटर। तो इन्होंने बोला है कि इस वाटर का कुछ सरफेस टेंशन है टी, और इसकी कोई भी डायमेट्रिकल लाइन ले लो। इस सरफेस को मैं अगर टॉप सरफेस से देख लूँ, टॉप व्यू से, ठीक है, तो इसकी कोई भी डायमेट्रिकल लाइन ले लो, ये ले लो या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो, सबकी लेंथ तो सेम ही होनी है। दैट लेंथ विल बी, अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, ओके। तो
तो इन्होंने पूछा कि व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अभी हमें पता है कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। ठीक है, फिर से कंफ्यूजन मत करना। मैंने अभी तक बोला था कि अगर स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो इसका जो यूनिट होता है न्यूटन होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट केस है कि सरफेस टेंशन नाम तो टेंशन है लेकिन उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर है। तो इसको टेंशन, ये सरफेस टेंशन और फोर्स को मतलब इसमें कंफ्यूजन मत कर लेना। फोर्स इसका यूनिट न्यूटन है, लेंथ मीटर और इसका न्यूटन पर मीटर। तो इन्होंने बस अलग कोई नाम नहीं मिला इसलिए सरफेस टेंशन दिया है। ओके, so this force, let's say to find this force, the surface tension is what? 0.075 newtons per meter, and on what length it is being acted? 20 centimeters, that is 0.2 meters. ओके, तो इसको अगर सॉल्व करोगे सिंपली तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये दो डिजिट्स ऊपर लाता हूँ। सो दिस इज 7.5 इंटू 10⁻², इंटू इसको भी आगे लेता हूँ 2 इंटू 10⁻1। इज इट करेक्ट है? ये सिंप्लिसिटी। और 7.5 का डबल कितना होता है? 15 होता है, इंटू 10⁻² और 10⁻1, दैट विल बी 10⁻3। अब इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा न्यूटन। वाई? बिकॉज व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग अबाउट द फोर्स, एंड फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अगर उन्होंने फोर्स दिया होता और लेंथ दी होती और पूछा होता कि सरफेस टेंशन निकालो, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आंसर आ जाता तो यहाँ पे न्यूटन मीटर यूनिट लिख लेते। ओके, गेटिंग दिस? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस second question. A thin wooden rod of mass m and length l is floating on water. Okay, so this is the water they are saying, और यहाँ पे एक छोटा सा वुडन वॉल रॉड है जिसका मास m है, और अगर यहाँ से 3D में देखूं तो इसकी लेंथ कितनी है? l है। ओके, तो मैं यहाँ पे सामने से देख रहा हूँ। सॉरी। Find the force required in vertically upward direction to lift the rod from the water surface. हमें वाटर सरफेस को क्या करना है? उठाना है। एक क्वेश्चन आपकी कंसेप्ट सेट कर देगा। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज टी। इसका सरफेस टेंशन कितना है? टी। यहाँ पे देखो करना क्या है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि यहाँ पे जब इस रॉड को जो उठाओगे बाय अप्लाइंग सम फोर्स एफ, तो जब ये जब रॉड ऊपर उठ रहा होगा ये वाटर इसको क्लिंग होता है, मतलब ऐसे चिपक जाता है। ये देखा होगा आपने कभी कभी, सोचो, इमेजिन करो, किया है, हुआ है तुम्हारे साथ। तो जब इस रॉड को तुम उठा रहे होगे तो वाटर ऐसे ही नीचे नहीं रहता भाई, चला जाता, वो क्या करता है इसके साथ ऐसे चिपक जाता है ऐसे। समझ में आ रहा है? तो अभी इस पे लगने वाले हम फोर्सेस देख लेंगे। पहले तो हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं F, जिससे हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ग्रेविटी इस पे फोर्स लगा रही है mg, क्योंकि इसका मास दिया है, लाइट वेट नहीं कहा। नाउ यहाँ पे अगर देखोगे तो इस रॉड के दोनों तरफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सरफेस है, यहाँ पे भी सरफेस है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, और यहाँ पे भी फोर्स लगेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है? तो हमने अगर F, या अगर ये उठा रहे हो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स एक्सेलेरेशन इज जीरो, और ज़्यादातर कंडीशन ऐसे ही होते हैं, इसको स्लोली उठा रहे हो विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी और नथिंग, तो ये सब क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में। तो दिस F विल बी mg प्लस 2 टाइम्स फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ना फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है? L।
So this force will be mg plus 2 into t into L. This much force you need to apply to lift that rod at a constant speed. Getting this? So this is the answer to this question.